bubbles. Here, the first boiler trouble is carryover, whereas second one, formation of scale and sludge. Third one is boiler corrosion. Whereas last one, fourth is caustic. Embrittlement. Okay, these are four main types of the boiler troubles. Okay, it interrupt the actual functional, or it interrupt the 100% efficiency of the boiler. Is it clear? Now the first one, we will discuss one by one. The first one is carryover. What it mean by the carryover actually? क्या होता है इसका मीनिंग कैरीओवर का? और this carryover is described into the two forms. First, priming, and the second one is foaming. Okay? Suppose this one is boiler. Here inlet, water inlet, and this one is the steam outlet. Steam outlet. And this one is water level. Okay? What will happen? Actually carryovers का मतलब क्या होता है? कैरी ओवर, बॉयलर का फंक्शन क्या है? बॉयलर क्या करता है? बॉयलर generate the steam. Yes or no? When the concentration of the impurity increases in the boiler, and suppose sudden demand of the steam, or change the velocity of the what? Steam formation, then what will happen? There is the sudden in this steam, what will happen? Water droplets, जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे वो स्टीम के साथ कैरी ओवर होने लगेंगे. वाटर ड्रॉपलेट्स भी स्टीम के साथ स्प्रे होने लगेंगे वेयर द अदर पार्ट ऑफ द बॉयलर, और द आउटलेट, फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द बॉयलर. वाटर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था बॉयलर से, ओनली स्टीम पास होनी चाहिए थी बॉयलर से, ड्राई स्टीम पास होनी चाहिए थी. लेकिन अगर बॉयलर के डिजाइन में फॉल्ट है, या सर्टेन वेलोसिटी चेंज हुई स्टीमिंग की, या सर्टेन वाटर की वेलोसिटी चेंज हुई इनलेट की, देन व्हाट विल हैपन? ये जो स्टीम है ये वाटर के ड्रॉपलेट्स को लिफ्ट कर लेगी और उसे कहां छोड़ेगी? बॉयलर्स के अदर पार्ट्स में. इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? कैरीओवर. मींस lifting the water droplets along with steam. Okay, this is called, actually this one is called weight steam. Okay, and the process and function of the weight steam. The process of weight steam is called priming. Means what? Here in priming, sudden formation of the bubbles take place. Okay,
दिस प्रोसेस, दिस इज द वेट स्टीम। जब भी वाटर ड्रॉपलेट को कैरी करेगा, लिफ्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम वाटर सरफेस टू द अनदर पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? ये किस टाइप की स्टीम बन जाएगी? वेट स्टीम। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्राइमिंग। इज दिस क्लियर? दिस वन इज कॉल्ड एज अ प्राइमिंग। नाउ व्हाट अबाउट द फोमिंग? What about the foaming? Yes. Foaming. Persistent bubble का continuously बनना due to the oil present in the boiler. Suppose there is the impurities such as oil or grease. ऐसी impurity अगर water में present है तो क्या करेंगे? ये ऑयल जो रहता है ये क्या कर देता है? वाटर का सरफेस टेंशन कम कर देता है और बबल्स बनाता है। और बबल्स कैसे रहते हैं? बहुत देर तक परमानेंटली फॉर्म रहते हैं। दैट मीन्स सडन फॉर्मेशन ऑफ persistent bubbles are called foam. Is this clear? So this one is the foaming. Actually, in priming, there is the big bubble is formed. Big bubbles are formed. Okay, as compared to the foam. Clear हुआ? This one is called as a priming. जब steam lift होती है, water droplet भी उस steam के साथ जाने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्राइमिंग। और जो स्टीम वाटर ड्रॉपलेट को कैरी कर रही है वो कैसी स्टीम रहेगी? वेट स्टीम रहेगी। प्राइमिंग और फोमिंग दोनों एक साथ होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? तो यू हैव टू राइट डाउन दिस वन, फिर इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कॉजेस और इसका प्रिवेंशन। ठीक है? द फर्स्ट प्राइमिंग, okay, the first one is sudden demand of steam. Okay, the second one is sudden change velocity. Third one, improper boiler design. Okay, the fourth one, now improper water level inside the boiler. These are the causes of the priming. Clear हो गया? डिफॉल्ट डिजाइन, सडन स्टीम की डिमांड होना, सडन चेंज ऑफ द वेलोसिटी, मतलब तुरंत वेलोसिटी भी चेंज हो गई, स्टीम भी फास्ट, स्टीमिंग भी फास्ट कर लिया, मतलब हीटिंग बहुत फास्ट कर दिया अचानक। फिर क्या है? प्रॉपर डिजाइन नहीं है बॉयलर का और वाटर लेवल ज़्यादा है तब। ऐसे कंडीशन में प्राइमिंग फॉर्म होता है। इज दिस क्लियर? एंड फोमिंग, causes of foaming. What is the main cause of the foaming? The first one, presence of oil.
oil decreases the surface tension of droplets. अगर सरफेस टेंशन कम हो गया तो वो इजीली लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये किसके लिए क्यों है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस फॉर्मिंग का, दिस एंड द सेकेंड वन presence of detergent type clear हो गया? So this one is the two main reason for the formation of the foaming. अब ये प्राइमिंग और फोमिंग से ड्रॉबैक क्या है? What is the disadvantage of this one? Priming and foaming. Disadvantages of foaming. बताइए। First, अगर प्राइमिंग और फोमिंग होगा तो we cannot judge the proper height of water level. हम जज कर पाएंगे क्या वाटर लेवल कितनी है, क्योंकि बॉयलर के अंदर प्राइमिंग भी बना है और फोमिंग भी बना है। इज दिस क्लियर? द सेकेंड, दिस कैरी ओवर carries the impurity deposited at machine or turbine blade. What will happen? जिस मशीनरी में हम यूटिलाइज कर रहे हैं स्टीम को, अब स्टीम वेटेड है, स्टीम हैविंग द इम्प्योरिटी, वो जहां पे भी टकराएगा तो उस मशीनरी में या फिर टरबाइन ब्लेड में डिपॉजिट हो जाएगा। व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस डिपोजिशन? द इफिशिएंसी ऑफ मशीन डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस। नाउ द थर्ड पॉइंट, it decreases the life of machine or instrument. Is this clear? और इसके बाद क्या प्रॉब्लम होगा? ये बार बार डिपॉजिट हो रहा है तो it blocks the pipeline. Chance increases the chances of explosion. कैसे एक्सप्लोजन होगा, कैसे एक्सप्लोर होगा? अगर ब्लॉक हो गया पाइपलाइन, आउटलेट पाइपलाइन अगर ब्लॉक हो गया तो देयर इज द चांस फॉर द ब्लास्ट हो जाएगा। इसमें बॉयलर में। So these are the disadvantages of the carryover. You have to write it down first. फिर हम इसका क्या पढ़ेंगे, रेमेडी, इससे बचे कैसे, प्रिवेंशन। फर्स्ट you have to write down this one. From formation how we avoid the formation of the priming? First, by fitting steam filtration or purifier.
स्टीम प्यूरिफायर एक लगाने की जरूरत है, कहाँ पे? बॉयलर में, बॉयलर के आउटलेट में। इस सेकेंड बाय मेंटेनिंग वाटर लेवल or keeping it at low level। जब लो लेवल में वाटर रहेगा तो ये प्राइमिंग नहीं कर पाएगा। नाउ द थर्ड वन, बाय अवॉइडिंग सडन demand of steam। Okay, now the fourth one, by avoiding the change in steaming rate। Okay, these are the process, and obviously by blow down process, blow down process means to shut down and change the complete water, and obviously sixth one, by feeding the proper softening water, soften water। It should not have the impurity, pure soft water चाहिए। In this way we can avoid the formation of the priming। And what about the foaming? Prevention from foaming, or how we avoid the formation of foam। Is this clear? The first one, क्यों हुआ था? वाई फोमिंग क्यों बना था? यस, ऑयल था। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऑयल रिमूवर ऐड करना पड़ेगा बाय एडिंग द केमिकल which remove the oil, like sodium aluminate। Is this clear? Second, by adding anti-foaming agent like castor oil। ओके, कैस्टर ऑयल किसका काम करता है? एंटी फोमिंग एजेंट का काम करता है। और बाय एडिंग द केमिकल लाइक सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या करेगा? ऑयल निकालेगा वहां से। जो भी ऑयल प्रेजेंट होगा वो ऑयल को कौन डिस्ट्रॉय करेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। इज दिस क्लियर? और सरफेस टेंशन कौन मेंटेन करेगा? कैस्टर ऑयल। इज दिस क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरियर। क्लियर हुआ आपको? इज दिस क्लियर?